My lord, on the last date of hearing, I have filed the intervention application, my lord. My lord, the intervention application is only to the extent that, my lord, 2013 के मैटर में आप लोग actually, my lord, the cause of action has arisen only in the month of June 2024, my lord, when NRDA has communicated to us the status quo order, my lord. Prior to that, no cause of action has arisen for us, my lord. That's why as and when, my lord, we got the cause of action, my lord, we have moved to this court, my lord. A reply has been filed to that intervention application that as held by the Honorable Apex Court in the matter of land acquisition and third party has no interest. So, and this is the written submission which I have prepared, Lordship. My lord, I have been allotted the land from the NRDA, my lord. Lease deed has been executed in my favor, my lord. And on 20th of June 2024, my lord, I have been क्या है committed. ये मैटर इज सब जुडिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ये क्या लाया है? नहीं लॉर्डशिप, वन ऑफ द इशू इसमें ये था कि वन ऑफ द ग्राउंड व्हिच आई हैव टेकन वाज कि एसडीओ कैन नॉट एक्ट एज कलेक्टर and therefore on that limited issue that किसी और केस में that matter is pending before the Supreme Court. However, from Madhya Pradesh High Court a matter has travelled to Honorable Apex Court, and in that matter the Apex Court has held that SDO cannot discharge functions of collector under Land Acquisition Act. On that one of the ground was that, तो वो वाला अभी पेंडिंग है वहां पे, मुझे छत्तीसगढ़ से ही ट्रैवल होके गया. Otherwise, Lordship, I am ready to argue the matter because the आप तो रेडी हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? Lordship, I am praying for a short time. The contesting party is the NRDA in the state, my lord. I have only limited role. Who is appearing for NRDA? Yes, Lordship, that's why I'm saying actually I'm appearing on behalf of Mr. Das, Lordship. He had to go to Raipur due to medical exigency in his family, Lordship. Who? Mr. Das. Lordship, इसको next For week, NRDA. next week. And Lordship, today only we have received something. That is one page reply है कि intervention application maintainable नहीं है और हमने master plan लगाया है ये बताने के लिए कि उस land पे क्या हो सकता है और Today क्या हो रहा है. itself, after lunch only we have received, Lordship. हाँ, that has been filed today itself, लेकिन वो that is nothing material नहीं है उसमें कुछ. What my respectful submission is, my lord, though I am only having the same limited to my client, my lord, this only will limited to the fact that NRDA has allotted legally, my lord, the land to me. I have paid the entire amount, my lord. The land is for the construction of the for the setup as per the industry policy, my lord. There is a policy existing, my lord. Only in the month of June 2024, my lord, I have been issued a letter, my lord. The entire allotment is for the 10 acres, my lord. NRDA has issued my letter stating that you please maintain the status quo with regard to entire land, my lord. NRDA has not clarified to me in with respect to which there is a dispute, my lord. The entire petition, my lord, there is several owner, my lord, landowner are there, my lord. Let the NRDA clarify to me, my lord, with regard to which. नहीं तो आपका ही सबमिशन था मैडम. Lordship. 38 2024 का कि identical matter is pending. Lordship, हाँ, that added and it is still pending. I have the judgments. वो एक हमारा first ground वही है कि SDO cannot act as collector. Lordship, but ये जो मैटर जो है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुडिस है, नहीं वो उसमें यही मैटर है. Lordship, लैंड एक्विजिशन का मैटर है उसमें भी नहीं ये पावर ऑफ एसडीओ एंड कलेक्टर. एसडीओ ने ही डिस्चार्ज किया, मेरे से भी एसडीओ ने डिस्चार्ज किया है और ये पेंडिंग है वहां से. हाँ, ये छत्तीसगढ़ से ट्रैवल होके गया. जो मध्य प्रदेश से ट्रैवल होके गया उसमें मई 2024 में डिसीजन आ गया कि एसडीओ कैन नॉट एक्ट एज कलेक्टर. लेकिन हमारा वाला पेंडिंग है. हाँ, हमारा वाला सेम इशू बट ऑन लास्ट डेट ऑफ ओकेजन द एनआरडीए इज अपोज्ड टू दैट कि ये आइडेंटिकल नहीं है. सो देयरफॉर आई हैव प्रिपेयर्ड द मैटर. अगर उस इशू को अगर नहीं भी देखेंगे तो आई हैव 12 अदर इश्यूज बट दैट इज स्टिल पेंडिंग. और हमारे हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि इट इज द एसडीओ कैन नॉट एक्ट एज कलेक्टर. नहीं, लेकिन अब तो हमारे ही हाई कोर्ट से गया वो छत्तीसगढ़ का मैटर पेंडिंग. दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग टाइम. But on last date of occasion, the NRDA has objected, so that's why I prepared the case. But it is still, and I have the orders with me of High Court. Judicial discipline के against हो जाएगा मैडम. इसको इसी ग्राउंड पर अभी करते हैं. Lordship. और जब वो आ जाएंगे. And Lordship, one more fact I want to place. This petition was filed in the year 2013. उस समय कोई स्टेटस नहीं ग्रांट हुआ था, कोई इंटरिम नहीं ग्रांट हुआ था. For 10 long years वो पोजेशन फार्मर्स के पास ही था, वो लोग वहां पे फार्मिंग कर रहे थे. एंड कंसिडरिंग टू दिस फैक्ट कि 10 long years तक कोई नहीं पोजीशन लिया गया, दैट्स व्हाई स्टेटस को वाज ग्रांटेड इन द मंथ ऑफ May 2024. ओनली कंसिडरिंग कि अभी जो राइट्स अक्यूर हो गए हैं दैट वुड बी डिस्टर्ब. अब कब मिला आपको स्टेटस को? लॉर्डशिप ऑन 5th of 6th of May 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम. लॉर्डशिप 10 साल में पहली बार.
और 14 जून को हमको कम्युनिकेट हुआ मतलब, तो हमारा राइट ऑफ एक्शन 2024 में जून में गया मेंटेन स्टेटस को, जब हमको कम्युनिकेट हुआ। ठीक है ना। ये ऑर्डर को देखिएगा, इसी को लिखिएगा, NSLP बीइंग सिविल अपील नंबर, यहाँ है लिखा हुआ है ना, इस पेंडिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट एज सच द हियरिंग इज डेफर्ड लिस्ट द मैटर इन द मंथ ऑफ जनवरी ही कर देते हैं सीधा, ठीक है, क्योंकि अब तुरंत में तो कुछ होगा नहीं, आइडेंटिकल इशू ही है, यही है। और ठीक है, MP से डिसाइड हो गया होगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का मैटर गया है, वहाँ पेंडिंग है। The meantime, NRDA may be directed to at least clarify us the position with regard to status को मतलब, उनका लेटर में एक बार दिखा देता हूँ। हमको जो 10 एकड़ लैंड अलॉट हुई है मतलब, जो लैंड ओनर है उनके बहुत भी नहीं तो क्या क्लेरिफाई करेंगे, द ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय दिस कोर्ट, कौन से लैंड का स्टेटस को है मतलब, ये हमको वो तो एंटायर लैंड पूरा एक्विजिशन जो है पूरे सारे पर कुछ और भी हमको अलॉटमेंट कुछ और भी मतलब, हमको एक लेटर देख के बोल दी कि आप पूरा काम बंद कर दीजिए मतलब, at least let them clarify my lord. I have only the limited grievance my lord. I am not harping on the merits because I don't have the locus to harp on the अगर उनको परमिशन दे जाएगी तो that would be discriminatory अगर हमारी लैंड उसमें इन्वॉल्व। देखिए अभी आप आए हैं इंटरवेनर की तरफ से, अभी आपकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन पेंडिंग है, इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड, तो मैं उनको ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं करूंगा, यू फाइल एन एप्लीकेशन टू देम, already filed my lord. हाँ, अब उनसे आप क्लेरिफाई करवाइए। नहीं 19 से फाइल की बिफोर NRD we have already filed my lord. हाँ, तो वो अगर आएंगे फिर कुछ एप्लीकेशन लेकर के, तो देन इट कैन बी डिसाइडेड। my lord, actually we have moved an application before NRD for seeking नहीं clarification. तो अभी तो आपका इंटरवेंशन एप्लीकेशन अलाउ नहीं है ना, और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसलिए, ठीक है। In fact, Supreme Court has held, मैं judgment pass करे, I have written in my application also in 2011 12 SEC page para 34 की third party। तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन, कोई SDO ना? नहीं लॉर्डशिप, देयर आर 12 पॉइंट्स जिसमें मैं कर रही हूँ। नहीं, you are saying that the SDO is not having jurisdiction that is one to acquire the land. हाँ, that is one point कि सारा जो कलेक्टर को जो करना था वो सब SDO ने किया। सेकंड सेक्शन 4A का वॉलेशन है, सेक्शन 11 का वॉलेशन है, सेक्शन 12 का वॉलेशन है, फिर पब्लिक पर्पस चेंज हो गया है मिडवे में। एट द टाइम व्हेन नोटिफिकेशन वाज इशूड, एक तो पब्लिक पर्पस इज वेरी वेग, इट वाज ओनली डेवलपमेंट ऑफ नया रायपुर। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट such purposes cannot be said to be public purpose, just development of Naya Raipur. I have brought 2 judgments on that effect and thereafter lordship उसमें भी public purpose में क्या होना है वो नहीं बताया गया। रिटर्न जब फाइल होता है तब पूरे रिटर्न में लिखा है एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए चाहिए हमको लैंड, और सडनली इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल होती है विच सेज कि वो वाली लैंड इनको अलॉट हो गई है। सो पब्लिक पर्पस हैव चेंज एंड आई हैव आल्सो फाइल्ड अ मास्टर प्लान लॉर्डशिप। नया रायपुर का मास्टर प्लान बोलता है कि जो बड़ौदा विलेज है जिसमें एक्विजिशन हुआ दैट इज ओनली फॉर एयरपोर्ट एक्सटेंशन, देन हाउ कैन द थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में बी जनरेटेड? And this honorable Supreme Court in the recent judgment has in the judgment which I passed 1992 has clearly stated that third party का होगा ही नहीं। The land acquisition हमने challenge किया, it is only between me the जिसकी land ली गई and between the state. If after acquisition the land has been allotted to some another person, but third party is not generated in land acquisition matters. If the land acquisition is said to be valid and proper by the court, then obviously they will get the benefit. But if the entire land acquisition is vitiated, then third party interest that has decided yet. Yes, in recent judgment of Anil Foundation Lordship Supreme Court जिसमें land पे construction भी raise हो गया था, अनिल कुमार फाउंडेशन जिसमें कंस्ट्रक्शन भी रेज हो गया था लॉर्डशिप, उसमें कोर्ट ने बोला गया कि वो वापस किया जाएगा लैंड को ओनली बिकॉज लैंड एक्विजिशन के प्रोविजंस कंप्लाई होते। एवरीथिंग आई हैव नोटेड डाउन। शर्मा आप खुद ही रोक लीजिए। नहीं सर, हमने तो रोका हुआ है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। वी फॉलो द order of honorable court my lord, that's why we have bona fidely come before the honorable court to clarify the position my lord. My lord, may kindly see for a moment my application my lord. 171 पेज में मेरी एप्लीकेशन में they have given me the possession of the land my lord. Entire lease deed has been executed my lord. 10 एकड़ की लैंड है, उसमें खसरा नंबर हम कितना ही चाह रहे हैं my lord, और जो लैंड इन्होंने दिया है उसमें वो 2 खसरा नंबर ही ऑलरेडी मेंशन्ड है my lord, जो इस पूरे एंटायर बाकी लैंड इस पिटीशन से लेना देना नहीं है हमारे लैंड का my lord.
2-3 खसरा ये मतलब वो कहाँ दो पर है? तीन खसरा नंबर इस पिटीशन से रिलेटेड है। हाँ बस, तो उसमें ही हमको बोला गया कि आप स्टेटस को मेंटेन आप करें, इसी में हमारा इसी में इशू करिए ये है ना। कि मतलब वो 2-3 खसरा नंबर कहाँ पर आ रहे हैं एनआरडी हमको बता दो। ये तो issue आप है उनसे पूछिए। मैं वही चीज के लिए आया मतलब दैट वी हैव रिक्वेस्टेड हिम मतलब द एनआरडी, बट एनआरडी इज मतलब बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑर्डर इज नॉट टचिंग द इशू मतलब दैट्स व्हाई वी हैव बोनाफाइडली कम मतलब। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा मतलब कि पूरा स्टेटस केस को वाज ग्रांटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द लैंड्स ऑफ दिस पिटीशन ना। मतलब हाँ। बट वो लैंड कहाँ पर है ये तो एक्चुअली एनआरडी ये तो वही बताएंगे, वो सब तो रेवेन्यू अथॉरिटीज का है, एनआरडीए का है, वो बताएं। what my respect to him, I cannot go on the merits of the case because I don't have the locus, and I am not touching the merits of the case. Whatever there is a dispute between the owner and them, I am only before my lord, with the folded and that bona fidely I have been allotted the land, 10 acres. NRD on their application has not stated that where is the land which is which they have directed me to maintain a status quo. Let the my lord ये नहीं बता पाएंगे उसको भी, ये हाँ बीइंग वेरी जूनियर। नहीं ये नहीं मैं इनकी बात नहीं हाँ, नेक्स्ट हियरिंग में वो एनआरडीए के एडवोकेट रहते हैं ना। हाँ, तो नेक्स्ट हियरिंग में ये इशू ओपन रख दे मतलब हाँ, अगर ये अभी मैटर कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा हूँ अभी, मतलब अभी तो इसी बात पर कर रहा हूँ। मतलब व्हाट माय रिस्पेक्ट टू सबमिशन मतलब नॉट ऑन मेरिट्स मतलब अब शॉर्ट डेट में भी गिवन मतलब ट्राई हाँ, टू ठीक है दिसंबर ना, मतलब ठीक है ना, ये खाली मेरी एप्लीकेशन में हाँ डिसाइड हो हाँ, जाए बाकी ठीक है फिर ना, उनका इशू जो ठीक है, ठीक है। मिस्टर शर्मा सबमिट्स, ये वाला लिख लीजिएगा पहले, है ना। एज सच द मैटर इज डेफर्ड, द मैटर इज डेफर्ड नहीं लिखिएगा। मिस्टर शर्मा अपीयरिंग फॉर इंटरवेनर्स, दैट इज न्यूक्लियस टेक कंसल्टिंग प्राइवेट न्यूक्लियस टेक कंसल्टिंग प्राइवेट ये सॉफ्टवेयर कंपनी वो उनको लिख के दे दीजिएगा। submits that they have been allotted 10 acres of land, out of which 2-3 khasra numbers relates to this petition. However, they are not having knowledge that where these lands are situated. As such, for a direction to the NRDA, the matter may be listed after 2 weeks only for this purpose, to determine whether the status quo will be, नहीं उतना मत लिखाइए, to determine the actual position of the land in dispute. For the limited purpose, the matter is directed to be listed in, for this limited person, the matter is directed to be listed in week commencing 25th of November. नहीं एक फिक्स डेट लगाइए, ठीक नहीं, week commencing 25th of November, and the counsel for NRDA is directed to appear on that day, since he is not available today. ठीक है, interim relief granted earlier shall continue. Obliged lordship. ठीक है, अब उनका भी कहना ठीक है, वो मान लीजिए पूरे में है तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन रेज नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जो पता possession चल जाए अगर वो बता दें तो उस पर उस जगह को छोड़ के देंगे, वहां स्टेटस को रहेगा। लॉर्डशिप जो और पोजीशन सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया है ना इनकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन में, उसमें ग्राम बड़ौदा लिखा गया। अब इट डिपेंड्स ग्राम बड़ौदा में ऐसे कितने और एक्विजिशंस हुए हैं, एक बार दैट हैज टू बी सर्टिफाइड। और वो और चलिए ना, वो आएंगे ना, लॉर्डशिप दास जी आएंगे तो पता चलेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट वाला ये मैटर